starting the revision of first two chapters I have already done, that is Tiger King and third level. Now I'm going to the third chapter, Journey to the End of the Earth. Now what kind of questions you can get from this chapter? This chapter अभी तक बोर्ड में we have got RTC इस chapter से, क्योंकि एक RTC आपका विस्तार से आएगा and you will be getting one from poem and one from flamingo. So one chapter, one this, and then there is one question विस्तार में आपके जो questions आएंगे उनमें से एक and एक long, और इसमें से आप RTC and long questions को expect कर सकते हो. Right, as the chapter says, journey to the end of the earth means if we talk about North Pole and South Pole, Antarctica आपका जो है बिल्कुल end में आता है, which is covered with a shield of ice. And if we talk about Antarctica, which is written, this chapter is written by Tishani Doshi. She says it is a pristine environment. मतलब वहां पर आपको पेड़ पौधा, आपको पेड़ पौधा, देन आपके जो गंदगी, nothing is there. It's untouched by humans. Since the place is completely icy, तो वहां पर जो है इंसानों का रहना पॉसिबल नहीं है. So you don't have the boardings, you don't have the hoardings, you don't have the blaring of loudspeakers. What you feel is वहां पर एक दो आपके जो मतलब if we see, there are some French bases जहां पर आपके scientific inventions वगैरह रहते हैं. Plus you find the algae, penguins, and of course the floating glaciers. It is said to be the coldest, the driest, and the windiest continent on this earth. और अंटार्कटिका आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि, and this is a long question only, why is Antarctica said to be the place to study Earth's past, present, and future? Because if we want to talk about what was our past, you can see the carbons that are trapped in the ice. If you want to see the present, you can see the glaciers melting down and they are breaking. And if you want to see the future, you can see if the sea level rises, what will be the future of continents. So that is why it is the best place to study the past, present, and future. तो जो author है, जो narrator है इसकी, she was on this trip, which is part of Students on Ice program, जो प्रोफेसर जॉफ ग्रीन ने बनाया हुआ है, in which he intends to take the senior school students on this program. उनका मानना है that the celebrities, whoever, they only endorse the things, they don't actually involve. और जब हम लोग ऐसी बातें करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी इन्वॉल्व इन दिस. जैसे politicians, what they do, they come, they take, they say that we are also cleaning, but cleaning exactly वही करता है जिसको पता है उसका मतलब क्या है. So celebrities may endorse, मतलब इसमें एक क्वेश्चन आया था कि why does not he want the celebrities to endorse? So they endorse it for money, they endorse it for their fame, they don't engage in that. वो कहते हैं कि इफ यू आर सिटिंग ऑन योर काउच, आप टीवी के सामने बैठकर देख रहे हो, माय गॉड दिस इज हैपनिंग, इट विल नॉट. व्हेन यू गो ओवर देयर, जब आप वहां पर जाते हो, यू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द एक्टिविटीज. when you see the glaciers melting down, when you understand the biodiversity, then you will understand what are the harm that we are doing. और यहाँ पर class 12, let us connect to the poem Keeping Quiet. Keeping Quiet में भी तो poet यही बोलता है ना, Pablo Neruda, that we need to check on the activities that are harming Mother Earth. Antarctica, on the other hand, was a part of a larger continent which we call as Gondwana. But due to the drifting of the glaciers, due to the breaking of the continent, this portion remained in the southern area and the rest moved, like आपका South Africa, India, South America, Australia.
and that shows what is the impact of global warming. अब वो उसके आगे वो एक्सप्लेन करती है कि उसने जो है उसने जो है डिफरेंट टाइम जोन्स, बिकॉज शी स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से उसको अलग अलग टाइम जोन्स को क्रॉस करना पड़ा. द मोर यू मूव टू द ईस्टर्न साइड, आप आगे चले जाते हो, you know that. So she had to move to the different time zones, she had to move through different water bodies, and then when they reached that area, जब वो लोग वहां पहुंचे, where they had to stop their ship, Slovelki, the Russian ship था, उसको वहां stop करना पड़ा. And when they were asked to walk on the ice, it was an entirely exotic moment for her. क्योंकि आइस पर वॉक करना इतना आसान नहीं होता है. सो इट वॉज जस्ट लाइक वॉकिंग ऑन द पिंग पोंग बॉल्स. एंड देयर दे कुड सी आइस के शीट के नीचे जो आपके एल्गीज है, आपके सील्स है, वो सब वो वहां पर देख सकते थे. एंड दे कुड ऑल्सो विटनेस द एनवायरमेंट अवेयरनेस ऑफ फोटोप्लैंक्टन्स. ये आपका पेपर का अगेन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फोटोप्लैंक्टन्स वो कहते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दे आर ऑल सिंगल सेल्यूलर. लेकिन सिंगल वहां पर वो वर्ड ये इसलिए यूज किया है कि छोटा सा माइक्रो नैनो होते हुए भी इट्स इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल इको डाइवर्सिटी, वहां का जो एक्वेटिक डाइवर्सिटी है उसके लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उनका कहने का मतलब क्या है? टेक केयर ऑफ द लिटिल थिंग्स एंड द बिगर थिंग्स विल कम इन टू इट्स प्लेस. मतलब इतना छोटा सा माइक्रो एल्गी, लेकिन उसको भी अगर हम, इफ वी आर इग्नोरिंग, द एंटायर बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया सफर्स. So it is our ethical responsibility. मतलब the chapter, it ends with this key. It's the ethical responsibility that as human beings, if we don't understand what are the harms that we are doing to Mother Earth, we would never understand what we are doing to ourselves. So this chapter say, take care of the little things and bigger things will come into its place. Then photoplankton का जो मतलब की जो importance है वो. Then what was the vessel वो. Then what is the student on ice program about? Why Antarctica is called as the perfect place to study Earth's past, present, and future. ये. And why does Geoff Green take school students for this adventure, not the celebrities? These are the most important and repeated questions from this chapter. Right? Now, the second chapter which I'm going to take today is enemy. You can see what I have made it. I've made the summary. I've setting kahan par hai. What is the theme? From this chapter, basically जो क्वेश्चन पेपर में आता है, जैसे उसमें मैंने कहा था आरटीसी आ सकता है. You can expect an RTC. In this, the theme, because it's a very theme philosophical chapter, वो, and of course the 2 marker question आपका, you can expect this. The theme is humanity, morality, patriotism, ethical responsibility. Humanity, morality, ethical responsibility. It's about the conflict of duties and ethical dilemma. मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. The chapter is set during the World War II in Japan. And the main character that you have is Dr. Sadao Hoki, who was a Japanese surgeon, his wife, Hana, who supports him in every decision. And of course, there is one prisoner of war, the American soldier. जनरल है बट उसका इतना ज्यादा इस पूरे चैप्टर के अंदर नहीं है. हाँ, सर्वेंट्स जो हैं उनके ऊपर देयर इज अ क्वेश्चन विच हैज बीन रिपीटेड. राइट? दिस डॉक्टर जो है, जापानीज डॉक्टर, he was trained in America, but his
Father was particular that he should not leave his patriotism, he should not leave his motherland, and he should be loyal to Japan and Japanese culture. और जापान के लोग जो है इस बात के लिए we should be proud. They are very proud of their culture. They are very proud. But one thing is that they are also the happiest people on the earth. तो उनके फादर का मानना था that due to lack of education in Japan, he was sent to America, but he should not adopt the Western culture. Now, in Japan, he was posted in the army, but he was not sent along with the army when the war took place. That is, there were two reasons, और ये भी पेपर में आपके आया है. The first reason was he was perfecting a medicine that could render the wound clean, and secondly, he was also treating the journal of the army. वो जो जनरल था, he was not at all, he did not trust anyone other than डॉक्टर होकी सदाओ. इसीलिए वो नहीं चाहता था कि ये जो है आर्मी के साथ लड़ाई में जाए. दिस इज द बैकड्रॉप ऑफ द चैप्टर. मतलब इससे हमें क्या पता लग जाता है दैट ही वॉज बाउंड टू हिज मदरलैंड. ही वॉज अ ट्रू पेट्रियोटिक पर्सन. While he was pondering on all these events, suddenly he and his wife discovered that there was someone who had been thrown away by the waves, क्योंकि उनका घर बिल्कुल कोस्टल एरिया में था. And nearby there was a island, there was an island also. तो हमेशा वहां पर जो है फिशरमैन का आना जाना रहता था. But suddenly there was someone who was thrown. So for a time they thought it might be a fisherman, but जब वो उठा नहीं, तो they had to go and check. And when they checked, they found that he was an injured American soldier, prisoner of war. Why? Because he had been shot at the back. He was wearing the American Navy cap. ये आपके पेपर में I think 2010 या 11 में आया था कि how did they recognize that he was an American. Now he was in the ethical dilemma as a doctor, whether he should save the soldier or as a patriotic person he should throw him in the water. उसका मन तो था that he should throw him, लेकिन उसके हाथ सपोर्ट नहीं कर रहे थे. His heart and his mind were in dilemma. दिमाग कह रहा था कि भाई डॉक्टर हो, अपनी ड्यूटी करो. दिल कह रहा था भाई यू आर एन अब जापानीज. बट ना चाहते हुए भी, दो ही वॉज नॉट दैट मच, ही टुक दैट मैन टू हिज होम. अब घर के अंदर जाने के बाद ही फाउंड दैट द मैन वॉज इंजर्ड. उसको ही वॉज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग. एंड मे बी जब उसको वो भाग रहा था तो शायद पीछे से गोली लगी थी. एंड देन ही मस्ट हैव हिट अगेंस्ट द रॉक. तो वो जो मतलब की ब्लीडिंग थी वो ज्यादा हो गई थी एंड इट वाज अ फ्रेश ब्लड. सो दीज ऑल थिंग्स वर टुगेदर मेकिंग प्रॉब्लम्स. अब उसके पास था कि ही हैड टू ऑपरेट अपॉन दैट. ऑपरेट करने के लिए देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स. फर्स्ट ही हैड टू console the servants of the house. Secondly, he needed somebody to support him, to give the anesthesia and all. Anyway, he took that decision. That was a decision which he took on the spot. इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, मतलब आपके पेपर में आता कि जो उसका डिसीजन था, was it right? तो अगर आपको याद हो क्लास 11th में वी हैड अ चैप्टर द बर्थ. उसके अंदर भी जो डॉक्टर एंड्रयू होते हैं वो ही टेक्स द डिसीजन कि वो जो है मदर को बचाएगा, बच्चे को नहीं बचाएगा. दैट वाज द डिसीजन दैट ही हैड टू टेक अप इन दैट वे. मतलब अगर देखा जाए तो बच्चे को मतलब दैट्स अ डिलेमा. अगर मदर मर जाती तो बाद में वो पूछते कि भाई आपने मदर को क्यों नहीं बचाया. बट ही टुक इट इम्पल्सिवली. उसी तरीके से उसने डिसाइड किया दैट ही वुड ऑपरेट अपॉन. सो ही वेंट टू द सर्वेंट्स, एक्सप्लेन्ड हिज प्रॉब्लम. उसने अपनी प्रॉब्लम एज अ डॉक्टर बताया. लेकिन जो सर्वेंट्स थे दे डिड नॉट सपोर्ट हिज आइडिया. दे थॉट दैट द डॉक्टर बीइंग ट्रेन्ड इन अमेरिका वाज मतलब कि बिट, वो एक ट्रेटर बन गया है. एंड दैट इज व्हाई ही वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि उस वक्त में वॉर भी चल रहा था.
So they could not understand. In fact, when the servants were speaking to each other, और वहां हाना खड़ी थी, तो वो जोर जोर से जानबूझ के बोल रहे थे कि अगर डॉक्टर को सजा हो जाती है तो बेचारे बच्चे जो हैं दे वुड बी सफरिंग. हाना न्यू दैट, बट शी एज अ ड्यूटीफुल वाइफ, ये आपके पेपर में एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आई थिंक इट्स फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन. एज अ ड्यूटीफुल वाइफ शी सपोर्टेड हर हस्बैंड्स डिसीजन. ये इसीलिए क्योंकि डॉक्टर सदाउ एंड जो हाना की मीटिंग थी इन अमेरिका, दैट वाज अ चांस मीटिंग. लेकिन उस चांस मीटिंग के दौरान भी सदाउ वाज, मतलब कि सदाउ जो है उसने इस चीज को बना रखा था दैट अनलेस एंड अनटिल his father does not permit, he would not be taking any decision in the marriage life. तो सदाउ हमेशा ही अपने फादर की रिस्पेक्ट करता था, बट नाउ इट वाज एज इफ ही वाज डिसरिस्पेक्टिंग हिज फादर. तो इट वाज नॉट लाइक दैट. एनीवे, द डॉक्टर हैड टू ऑपरेट अपॉन द प्रिजनर ऑफ वॉर. उसने ऑपरेट किया. एंड हाना नहीं सॉरी, जो हाना थी वो नहीं चाहती थी दैट शी शुड सपोर्ट. इनफैक्ट जब उसने अपनी मेड यूमी को बोला टू क्लीन द पर्सन, शी रिफ्यूज्ड ब्लंटली. और हाना को लगा कि देखो उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मना कर सकती है, दो शी इज अ सर्वेंट, बट वो नहीं मना कर पा रही थी. बट शी सपोर्टेड. बोथ ऑफ देम लुक्ड आफ्टर दैट पर्सन. डॉक्टर सदाओ उसकी देखभाल करते थे एंड ही हैड स्ट्रिक्टली टोल्ड दैट ही वुड नॉट बी टॉकिंग टू द पर्सन. हाना ने एक दो बार उससे बात किया. शी एक्सचेंज द नेम एंड शी टोल्ड दैट शी वाज इन अमेरिका, बट उसके अलावा उनकी कोई बातचीत नहीं होती. Now, 7 days after this particular event, there were two events. ये पेपर में बहुत बार आपका जो है रिपीटेड आया है, रिपीटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली. एंड वो ये था that on the seventh day two things happened. In the morning when Hana woke up, the servants had decided to leave the house. उन्होंने अपना सामान बांध लिया, वो लोग चलने लग गए. Hana being a superior woman, she did not stop them. She just gave them their dues. And in the afternoon, there was a man in uniform. अब हाना को लगा शायद सर्वेंट्स जो हैं वो चले गए थे, उन्होंने जाकर शिकायत लगा दी है एंड द पर्सन हैज कम टू अरेस्ट डॉक्टर सदाउ. बट इट वाज नॉट लाइक दैट. It was a general's person who had come there to fetch the doctor because he was in pain. जनरल को जो है दर्द हो रहा था इसलिए वो आया था. लेकिन इस इंसिडेंट ने डॉक्टर सदाऊ को जो है थोड़ा सा नर्वस कर दिया. He felt that there is a need to get rid of this man or else there might be trouble. Therefore, he told this problem to the general, जिसने उसको promise किया that he would help him out to get rid of that person, and he would even assassinate him through his private assassins. अपने private assassins के थ्रू उनको मरवा भी देगा. अब जनरल तो सॉरी डॉक्टर तो बिल्कुल अश्योर हो गया. लेकिन इट हैपन 2-3 days हो गए, द assassins डिड नॉट कम. और इसी बीच जनरल की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई एंड ही नीडेड अ सर्जरी. सो ही वाज नॉट इन अ पोजिशन टू रिस्पॉन्ड. अब डॉक्टर सदाव के पास कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि एक तरफ द सर्वेंट्स हैड गॉन आउट. इट वाज ऑलवेज अ, मतलब कि एक खतरा तो था, दे माइट रिवील द ट्रूथ. सेकेंडली वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, ही वॉज ऑल्सो नाउ हेल एंड हेल्दी, वो बात कर रहा था, उठ के चल रहा था. तो देर वॉज ऑलवेज अ, मतलब कि देर वॉज अ डेंजर ऑफ बीइंग कॉट. अब वो क्या करे. अब आपके पेपर का अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वॉज द फाइनल सोल्यूशन टेकन बाय द डॉक्टर द राइट वन. तो एज अ डॉक्टर ही वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ हिज एथिकल ड्यूटी. मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो, आई हैव रिटन इट. इट वॉज हिज एथिकल ड्यूटी. ही वॉज अ डॉक्टर. नाउ डॉक्टर्स कैन नॉट किल अनलेस एंड अनटिल इट इज एन यूथनेशिया. मतलब अगर उनको मर्सी किलिंग देनी पड़ रही है, उसके अलावा वो मारने के लिए तो उनके अंदर हिम्मत नहीं हो सकती है. So he was bound to his ethical duty. He did not have the courage to kill that person. और उसको
पुलिस को देने का मतलब था खुद को जाकर जो है शेर के आगे बैठाना, बिकॉज ही वुड बी क्वेश्चन कि व्हाई ही ऑपरेटेड, व्हाई ही डिड नॉट अलाउ हिम टू डाई. सो ही वाज इन अ डिलेमा, एंड टू सेव हिज स्किन एंड ऑल्सो नॉट टू ट्रबल, उसने जो है एक फाइनल सोल्यूशन लिया, दैट ही वुड हेल्प द prisoner of war to escape. फॉर दैट ही अरेंज अ बोट, टॉर्च, क्लोथ्स, फूड, सब कुछ अरेंज किया. इवन अपना जो है मतलब कि ड्रेस भी उसके साथ उसको दिया. एंड ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही वुड live in that island till any American ship comes over there, and later on he can move अगर American ship आ गया तो. In this manner, on a humanity ground, हमारा जो थीम है ना, humanity, morality, ethical dilemma, on this ground, on these grounds, he helped the man to escape. Later, he was now happy कि वो चला गया. When the general came to consciousness, उसने जो है वो regret करने लगा. The reason, he felt bad that he had not helped doctor. तो डॉक्टर ने जो है, अब उसको डॉक्टर को पता था कि अब ये फंस गया है. Therefore, he told a lie that the prisoner had escaped. उसने escape किया नहीं बोला, वो भाग गया उसने बोला. Now the doctor, the general did not say anything. In fact, he said he would be rewarding him for his services. लेकिन डॉक्टर को ऐसा लगा कि उसको उसका रिवॉर्ड मिल गया है, सिंस द प्रिजनर ऑफ वॉर डिड नॉट कॉन्टैक्ट हिम अगेन. जो इसने बोला था कि यू कैन यूज अ टॉर्च मतलब कि ड्यूरिंग इफ यू आर इन ट्रबल, लेकिन उसने दोबारा इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया था, तो इसको लगा दैट ही हैज ऑलरेडी गॉट हिज रिवॉर्ड. लेटर ऑन एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल, सर्वेंट्स वापस आ गए. इनफैक्ट उसको इस चीज का एक मतलब कि ही फेल्ट वन थिंग, that when he was in America, जब वो खुद अमेरिका में था, तो there was a time when he was ill, and his जो उसकी लैंड ओनर थी, उसने उसको हेल्प तो किया था, बट नॉट ऑन द ह्यूमैनिटी ग्राउंड, ऑन द सुपीरियरिटी ग्राउंड. तो उसको लगा कि व्हाई ही हैड कम टू द ह्यूमैनिटी ग्राउंड. और उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ. व्हेन यू आर अ डॉक्टर, व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशन, यू नीड टू लुक इन टू योर प्रोफेशन. आम आदमी कुछ सोच सकता है, वो बोल सकता है, लेकिन जब आप एक लॉयर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, तो आपको अपने उस ड्यूटी को भी देखना पड़ता है. एंड दैट वाज अ मॉरल ग्राउंड. वो एक डॉक्टर था तो उसकी उसके मतलब कि सबसे बड़ी उसकी ड्यूटी थी टू सेव द पर्सन. सो दैट इज द चैप्टर द एनिमी. इसमें एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आता है, दैट नैरो प्रेजुडिसेस, मतलब we need to raise above the narrow prejudices. And what is narrow prejudices? हमारी छोटी सोच. We need to raise above that. हमें उससे आगे आना पड़ता है. Because sometimes, as I said, a doctor cannot think only as a human. He need to think as humanity. A doctor cannot think only like a simple man. He need to think like a doctor. उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब वो डॉक्टर पढ़ते हैं तो उनको ये ओथ दिया जाता है, तो he needs to follow that. So that's the chapter, the enemy. The last chapter that I have planned for today is on the face of it. On the face of it, as you can see, uh, on the face of it means overall, on the earth. It's a play. It's actually a dialogue. दो जनों के बीच का कॉन्वर्जेशन, मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके. It is between Derry and a man called Mr. Lamb. This is about the theme of what we call as isolation, human connection. Means
एवरीवन, हम लोग एक बात बोलते हैं, जब भी हम बात करते हैं हम बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एनिमल? मीन्स वी लिव इन दिस सोसाइटी, वी नीड पीपल, we need social interactions. Nobody can live in isolation. आपको कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी के साथ तो होना चाहिए with whom you are able to share yourself. But ह्यूमैनिटी एक ग्राउंड है, लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं ना वो इस बात को नहीं समझते. समटाइम्स दे फील इंटरैक्टिंग विद अ पर्सन जिसको आप अपने जैसा नहीं समझते हो, वेदर इट इज वेल्थ, वेदर इट इज स्टेटस, वेदर इट इज फिजिकल एबिलिटी, हमें लगता है कि वो हमसे कम है. And there might be a position, a situation called depression. Depression doesn't mean I am depressed. Depression can be, a person can be very happy, looking very happy, but the person may not be focusing. और एक बच्चे के लिए, when we talk about a child, it is very difficult to deal with such situations when people alienate you. हम जैसे बड़े लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हमें तो अब आदत हो जाती है लोगों का धक्का खाने की. But when it comes to a child, it is very painful when we see people ignoring you. Whether it is a gender discrimination, whether it is a caste discrimination, whether it is something other discrimination, discrimination in the form of anything is harmful. ये इसके themes है, right? Now this is an interaction between Mr. Lamb, जो अपना एक पैर खो चुके हैं in a war, and Derry, who has a burnt फेस ड्यू टू एन एक्सीडेंट. एक केमिकल बर्न की वजह से उसका जो चेहरा है वो जल चुका है. और डेरी का जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट मेक्स हिम सोशली आइसोलेटेड बिकॉज ही इज नॉट वेलकम बाय एनीवन. वो जहां पर भी जाता है, वेदर इट इज हिज ओन पेरेंट्स, दे आर स्केयर्ड इसका क्या होगा. when he goes to the market, वहां लोग उसको देखकर शक्ल बनाते हैं. when he goes to the bus stop, वहां पर लोग उसको देखकर जो है कमेंट्स पास करते हैं. and as a simple small young child, he is not able to face that, he is not able to accept that. अब ये जो बच्चा है, ही मतलब कि एक दिन जो है घूमते घूमते ही गोज इनटू द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम्ब. नाउ मिस्टर लैम्ब जो है, इवन ही इज हैविंग द फिजिकल डिसेबिलिटी, बट ही हैज एम्ब्रेस दैट एक्सेप्टेंस. उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है. उसको पता है कि लोग जो है दे स्पीक इन दैट वे, पीपल डोंट टेक यू एज इक्वल, दे मेक फन ऑफ यू. लाइक उनको बोला जाता, लेमी लैम, लेमी लैम. ही हैड एक्सेप्टेड इट. एंड ही लिव्स इन हिज होम अलोन. ही हैज अ गार्डन. उसमें वो तरह तरह के फल फूल सब ग्रो करते हैं, हनी हार्वेस्ट करते हैं, ऑरेंजेस लगाते हैं, एप्पल लगाते हैं. एंड इवन आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स ही मेक सर्टन थिंग्स लाइक जेली और टॉफी एंड ही गिव्स टू द चिल्ड्रन हु कम टू प्ले ओवर देयर. ही डज नॉट हैव एनी कर्टेन बिकॉज यहाँ पे कर्टन का एक सिंबल है. कर्टन हेयर इज अ सिंबल. अगर पेपर में बाय चांस इट कम्स इन द आरटीसी, कर्टन इज सिंबोलिज्म, यानी कि टू हाइड थिंग्स, चीजों को छुपाने की. ही डजंट हैव एनीथिंग, ही हैज प्लेंटी ऑफ बुक्स. जब उसके पास टाइम होता है वो बुक्स पढ़ता, अदरवाइज ही इज बिजी विद हिज ओन गार्डन. सॉरी. इन द गार्डन ही ग्रोस वेजिटेबल, मतलब कि ही ग्रोस थिंग्स लाइक वांटेड प्लांट्स एंड अनवांटेड प्लांट्स. पेपर में आया हुआ है कि यहाँ पर जो वीड्स हैं, WWEDS, वीड्स का क्या सिग्निफिकेंस है. तो इन आवर लाइफ वी विल बी हैविंग पीपल हु आर वांटेड, जो हमें चाहिए. वी आर हैविंग अनवांटेड. दोनों रहते हैं एंड वी एक्सेप्ट एवरीथिंग. सिमिलरली इन द प्लांट लाइफ, वी हैव वीड्स एंड वी हैव द प्लांट्स. दोनों की जरूरत होती. तो यहाँ पर वीड का वो एक इम्पोर्टेंस है, राइट. अब डेरी जब वहां पर अंदर पहुंचता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज शॉक बिकॉज
मिस्टर लैम वॉज वॉचिंग हिम, और वो उसको कहता है कि ध्यान से, वहां पर एप्पल्स पड़े हैं। Riya, तो what's up? मिस्टर लैम जो है उसको बोलता है कि वो डांट लगाता है, उससे कहता है कि तुम मेरे को वॉच कर रहे थे, तो कहता है हाँ। फिर वो कहता है व्हाई डिड यू क्लाइंब द वॉल, यू कुड हैव कम थ्रू द विंडो, थ्रू द डोर। वो कहता है आई डिड नॉट नो तुम्हें मुझे वॉच करो, वो वहां से जाने की कोशिश करता है। और वो कहता है कि जो भी इंसान मुझे देखता है, एनी वन हु वॉचेज मी कंप्लीटली इग्नोर्स मी, मेक्स फन ऑफ इट, और मेरे को देखकर वो डर जाता है। मिस्टर लैम डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ इमोशंस, ही डजंट शो एनी काइंड ऑफ मूड, he is very cool and he says why should be I afraid of you, you are a simple small 14-year boy, मुझे तुमसे क्या डरना है। तो डेरी उसको कहता है बिकॉज ऑफ माई फेस, वो कहता है कि देर इज नो नीड, एंड फेस तुम्हारा बर्न है, देर इज नथिंग लाइक फेस के अलावा, यू हैव योर हैंड्स, यू हैव योर लेग्स, यू कैन वर्क, यू कैन स्टडी वेल, यू कैन डू एवरीथिंग। एंड बिकॉज डेरी जो है वो थोड़ा सा दुखी है, तो मिस्टर लैम ट्राइज टू डिस्ट्रैक्ट हिम, वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ही गिव्स इन द एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये भी पेपर में आया है कि ब्यूटी एंड द बीस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस ये है कि ब्यूटी एंड बीस्ट सिंपल है कि अ बीस्ट कैन टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल मैन इफ देयर इज गुडनेस। तो वो कहता है मेरे मुझे कोई मतलब कि मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता, इवन माई मदर डज नॉट लाइक टू किस मी ऑन दिस प्लेस, शी kisses मी बिकॉज शी इज माई मदर, बिकॉज इट्स हर हैबिट। लेकिन डेरी जो है, सॉरी मिस्टर लैम जो है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ही इवन ऑफर्स दैट ही शुड कम ओवर देयर, हेल्प हिम टू गेट द क्रैब एप्पल्स, टू टॉक। फिर डेरी को थोड़ा अच्छा लगता है, वाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई इज डेरी कैरीड अवे, बिकॉज मिस्टर लैम वॉज द फर्स्ट पर्सन। एक क्वेश्चन है इसमें कि वाई मिस्टर लैम जो है उसका फ्रेंड बन जाता है, दो दे हैव एज डिफरेंस। द रीजन इज मिस्टर लैम accepted Derry as he was, and he did not talk about his disability, he did not show any sympathy, and that is where this the friendship stuck। उनका वो जो फ्रेंडशिप था वो इसीलिए स्टक हुआ था। सो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि उसको मतलब कि वो उसे पूछते हैं, एंड नाउ डेरी इज ऑल्सो वेरी मच व्हाट यू कॉल एज, ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। वो भी उससे बात करता है, वो पूछता है, देन ही टेल्स दैट व्हाट डू यू डू ऑल द डे। फिर वो उसे ये भी पूछता है कि आर यू हैविंग मेनी फ्रेंड्स, तुम सबको जानते हो, और जो भी आता है सबके नाम जानते हो। तो मिस्टर लैम उसको एक ही जवाब देते हैं कि इट हार्डली मैटर्स हु कम्स ओवर देयर, क्योंकि यहाँ एक बार आता दूसरा कोई नहीं आता, पीपल इवन कॉल मी एज लेमी लैम। And Derry is also disappointed to hear that Mr. Lamb was also disabled. बट वो खुद को कंसोल करता है कि भाई वो तो पैंट पहन सकता, ट्राउजर्स पहन सकता, मैं तो अपने आप को छुपा नहीं सकता। Yet he understands. Mr. Lamb does not make any fun of him. He does not ask any question. So there is a bond that stuck between them. अब थोड़ी देर बाद मिस्टर लैम सॉरी डेरी को अपने घर जाना है। मिस्टर लैम फील्स बैड। डेरी कहता है कि वो वापस आएगा, पहले वो कहता है वो वापस नहीं आ सकता बिकॉज हिज मदर विल नॉट अलाउ। तो मिस्टर लैम यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं विच आई रियली पर्सनली लाइक इट, और वो ये है कि इफ यू हैव द विश देन नो बडी कैन स्टॉप यू। हम लोग बोलते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो इफ यू हैव दैट विश नो बडी कैन स्टॉप यू। लेकिन फिर डेरी जो है वो बहाने बनाता है कि उसका घर बहुत दूर है, ही वुड बी मतलब कि टायर्ड। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू हैव द लेग्स एंड यू आर अ यंग पर्सन, सो यू कैन कम इफ यू वांट। एंड देन ही सेज तुम खुद नहीं चाहते हो तो यू विल नेवर कम। और ये बात जो है डेरी को बुरी लगती है, ही डजंट फील हैप्पी। वो कहता है मैं जरूर वापस आऊंगा, तुम देखना मैं तुम्हारे जैसा लंगड़ा नहीं, मतलब ही गेट्स ऑफेंडेड। When he reaches back his home, his mother, as anticipated, जैसा उसने सोचा था, उसकी मम्मी उसको जाने से मना करती हैं। लेकिन वो अपनी मदर को समझाने की कोशिश करता है कि मिस्टर लैम्ब इज अ गुड पर्सन, वहां पर रह के वो उनको हेल्प करेगा, उनसे बात करेगा। उसकी मदर उसको मना करती हैं, लेकिन वो नहीं मानता। हेयर द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर चेंज आ जाता है।
और वो अपनी मदर का कहना ना मानकर मिस्टर लैम के घर पहुंच जाता है. Ultimately, when he reaches Mr. Lamb's house, there a tragedy starts. और वो ये होता है कि मिस्टर लैम was taking off the apples, but the ladder broke and he fell down and he was dead. Derry is deeply disappointed, but his tears and the word that I have come back जो है वो ये बात को समझाता है that he had changed. So that's the chapter on the face of it. If you see on the one, you can see it is written, it's the importance of self-importance, need for compassion in human relations, human isolation. And if you see on this, if you see these three, the physical appearance, people judge you. People become judgmental because of your physical appearances. Then acceptance. We need to accept ourselves and we need to accept others also, regardless of the physical differences. So these are some of the main themes. This chapter is a theme-based question you can expect. And maybe in the short questions you can expect. So that's a chapter on the face of it. With this, I think we have done 3 chapters today. That's Journey to the End of the Earth, Enemy, and On the Face of It.